So, ma'am, I have some questions regarding the Indian students over here. How do you think the university wants the type of students over here? What type of students they want? If a student is coming from India, how strict is the university and how they want the student academics to be? I have an answer to this question because I'm also a teacher. And not only administrative staff, just we want talented students. Exactly. Yeah. So please, while considering all your opportunities for your future, you should understand that the pathway of a future doctor is very difficult. We, as the university, bear the responsibility for all systems of public health to which we prepare our graduates. Yeah. That is why you're going to study toughly like this. So basically, you want students to work really, really hard and focus on the studies only and become the excellent doctor. Yes. I discussed with the faculty also last year, and they informed me that they want the best graduates only in this university, and they want the best I hope students so. and work really hard. So it's not a university for students who just are coming over for St. Petersburg. It's for students who really want to become an excellent doctor. Yes. Yeah. So let's go to the anatomy department. You're welcome. So this is the anatomy department. I actually have a question for you. So in the anatomy department, are real cadavers provided to the students? We have a cadaver downstairs, we will show. Ah. And we also will tell you about one innovative method for anatomy studies. And only our university has a patent for this method. And this method was developed by just the head of the anatomy department. It is called plastification. Oh. And a little bit later, you will see what it is. Excellent. So you have a great anatomy museum over here, and as you can see, the real organs are preserved over here. So overall, if you're coming over here to Northwestern, you get hands-on experience to the real parts of the human bodies, which you can practice on, and cadavers also provided in Northwestern State University, because oftentimes Indian students have this myth that studies are on dummies, but it is not like that. The studies are on the actual body parts and in the simulation center, which are silicone bodies, which react accordingly as Yes, at simulation center we have special equipment with silicone bodies that imitate the body of a human, but here we have just implemented one innovative technique. How I have already said, it is plastification. It is when the real human body is plastified with the help of silicone. And it can be used long term. Yeah. Not just one time, but during several years even. Our Harvey, his name is Harvey. That is the examination of cardiovascular system. For example, you can listen to heart tones to detect different diseases, cardiovascular diseases. And also they learn how to measure blood pressure. So अभी हम सिमुलेशन सेंटर में, और एक्चुअली ये जो आप यहाँ पे सिलिकॉन बॉडी देख रहे हैं, एक्चुअली कोई नॉर्मल नहीं है. ये एग्जैक्टली रिएक्ट करती है ह्यूमन बॉडी की तरह. अभी जैसे हमारे साथ मैम ने बताया और हमने डिस्कस भी किया जी, ये बॉडी एक्चुअली सिर्फ इंजेक्शन आप देते हो उसे कोऑर्डिनेट करती है. कोई प्रॉब्लम अगर आप इसको जैसे हमें पीसी या उसमें सेटअप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरी बॉडी यहाँ पे रिएक्ट करती है. आप यहाँ पे CPR भी दे सकते हो, मतलब अच्छे सब कुछ कर सकते हो ओवरऑल बॉडी पे, और ये एग्जैक्टली रिएक्ट करेगी ह्यूमन बॉडी की तरह. आप मल्टीपल टेस्ट पे कर सकते हो, और ये पूरी बॉडी जो है एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की तरह ही है. उतना ही उसका वेट है, उतनी ही इसकी हाइट है. तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए सबसे बेस्ट है. और यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली इंजेक्शन, जैसे आप कोई प्रॉब्लम है और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंजेक्शन उसे बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, बॉडी का कलर भी यहाँ पे चेंज होता है. तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है सिमुलेशन सेंटर पे.
दिस इज अनदर रूम। यहाँ पे बेसिकली आप सीख सकते हो कि कैसे आपको ब्लड लेना है वेन्स, और एग्जैक्टली आप इसे सो टच करेंगे, फील करेंगे, एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी की तरह है, फील होती है। और यहाँ से एक्चुअली सप्लाई भी हो रहा है लिक्विड, तो यहाँ से आप प्रॉपर इंजेक्शन की मदद से सीख सकते हो कि कैसे आपको यहाँ से ब्लड लेना है वेन्स से। तो और हर तरह के रूम से आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तरह की स्किल्स कहेंगे, और अगर आप सीखना चाहते हो, सब कुछ अच्छे समझना चाहते हो, देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि हैंड्स एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है। और दिस इज़ अनदर रूम। यहाँ पे भी एक सिलिकॉन बॉडी है। यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जिस सब्जेक्ट की आपकी साइकिल यहाँ पे लग रही है उस अकॉर्डिंग आपको रूम में आना होता है सिमुलेशन सेंटर में। और यहाँ पे टीचर आपको प्रैक्टिकल ग्रुप को, जिसमें एक ग्रुप में तकरीबन 15 स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं और अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस के दौरान हैंड ऑफ प्रैक्टिस इन सिमुलेशन सेंटर्स में करते हैं। सो एग्ज़ाम्स वगैरह भी जो होते हैं ना आपके, जैसे एक्रेडिटेशन का मैं डिस्कस कर रहा था रूम में, एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम में 3 स्टेप्स होते हैं। एक एमसीक्यू होता है, एक आपका सिमुलेशन सेंटर में प्रैक्टिकल होता है, और एक वाइवा होता है। तो सिमुलेशन सेंटर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब स्क्रीन लगी होती है और अंदर स्टूडेंट जाता है, उनसे टीचर इंस्ट्रक्शन देती है कैसे क्या करना है। और मेथड जो प्रोसीजर, जैसे CPR हो गया, फिर कोई प्रोसीजर आपको हार्ट साइंस सुननी है तो वो आपको करके दिखानी होती है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपको इस तरीके से सिमुलेशन सेंटर के अंदर कंडक्ट होता है। Now we have reached the hostel of the university, which is on the campus. Come in, please. The dormitory is equipped with the system of electronic passes. We watch our students, their presence or absence in the dormitory, because we take responsibility for all international citizens. 6-8 rooms at each floor with a kitchen that students share here at this floor. And in the center of the hall, there are toilets and showers. Just normally, there are triple rooms for students and 4 people rooms like this normally. When they are already senior year students and the academic performance is very good, excellent, they can stay in double rooms. Here we have a big classroom where students can do their homework, assignments, prepare for classes and so on. Now only one of them is getting ready, yes, like this. But here you may see there's different textbooks, laptops, so they come here for studies. So this is the main indoor heated pool, और let's show you. So multiple lanes और काफ़ी बड़ा swimming pool है, और this is heated. तो अभी बाहर वेदर ऐसे काफ़ी ठंडा है, बट टेम्परेचर अंदर नॉर्मल है बिल्कुल। और हमने अपने शूज़ में अपना कवर पहन के और जैकेट बाहर रख के अंदर आए, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल है। और एज यू कैन सी क्लीनिनेस का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि विदाउट ये शू कवर्स के तो एंट्री होती भी नहीं है, यूजुअली शूज़ चेंज करने पड़ते हैं। सो कैंपस का टूर देते देते हम आगे हैं कैंपस के ऑलमोस्ट एंड में, और मेरे पीछे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली वी कैन से स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और जिम्नास्टिक्स यहाँ पे होती है। 2 चीज़ों के लिए मेनली ये वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और स्विमिंग पूल मैंने आपको अंदर से दिखा ही दिया है, बाकी काफ़ी अच्छा है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, और बाहर से भी लोग आ सकते हैं। मैंने भी बात की कि नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को यहाँ पे छोड़ने आएंगे तो हम जरूर टाइम निकाल के और यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे। बाकी अच्छा है कैंपस, पूरा टूर देखा हमने, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, सिमुलेशन सेंटर, क्लासेस बाकी सब भी सेम होती है। बिल्डिंग्स आपने देखी, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स, काफ़ी कैंपस सारा एक ही जगह पे है यूनिवर्सिटी का। कुछ बिल्डिंग्स है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है, वो इसलिए है क्योंकि एक्चुअली यूनेस्को साइट है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें करने के लिए परमिशन लगती है। तो ऐसा नहीं कि वो भी कुछ भी उठा के चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है। परमिशंस लेनी पड़ती है और परमिशन मिलती है तभी चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा कैंपस है, बहुत पुराना कैंपस है, बड़ा कैंपस है, और बहुत टाइम हो गया, हमें ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स हो गए, और मैंने 20% कवर किया, क्योंकि मेन डिपार्टमेंट्स हम यहाँ पे कवर करना चाह रहे, वो दिखाना चाह रहे थे कि रशिया में अगर आप आते हो और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप आते हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छे कैडावर्स यहाँ पे मिलते हैं, सिमुलेशन सेंटर अच्छे है,
फैकल्टी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, मतलब अच्छा, मतलब वी कैन से एक बेस्ट प्लेस है अगर आप अब्रॉड से MBBS करना चाहते हो। इनफैक्ट मैं इसको इंडिया से भी इजीली कंपेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ बोले कि इंडिया में एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, बट आप आओ, आप कैंपस देखो, फैसिलिटीज़ देखो, पढ़ाई देखो, करिकुलम आप देखो, सब कुछ आप देखोगे, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एक आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा, पढ़ाई अच्छी मिलेगी। आप रैंकिंग देखिए, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप में ये रैंकिंग यूनिवर्सिटी आती है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो, फैकल्टी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, सपोर्टिव मिलने वाली है। हमने डीन से इंटरेक्ट भी किया था, तो ओवरऑल आप यहाँ से MBBS की पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप सच में अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, घूमने फिरने के लिए आ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी वापस चले जाओगे। पढ़ने के लिए आ रहे हो, सभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट आप इजीली कर सकते हो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी अच्छा है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो येस, दिस इज़ वन ऑन दी ऑल पैकेज। और आप यहाँ पे MBBS की पढ़ाई करने आते हो, आई एम श्योर यू वॉन्ट रिग्रेट इट एट ऑल, बिकॉज सिटी इतनी प्यारी है, सिटी इतनी प्यारी है, बहुत अच्छी जगह है। मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप खुद भी, आप जो स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। और हम भी जब यहाँ पे आते हैं, हमारी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल पीटर्सबर्ग शहर में रहता है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और GT में एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं, एक्चुअली ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो दी नंबर पे, एंड वी विल हेल्प यू गेट लाइक, आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ कराने में हेल्प करेंगे आपकी। और सपोर्ट सिस्टम हमारा पीटर्सबर्ग शहर में काफ़ी अच्छा है, हमारी टीम काफ़ी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको पूरे 6 ईयर्स हम कोई इशू नहीं आने देंगे। और आपको जो भी हेल्प चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वी आर देयर फॉर यू। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो। और अभी हम चलते कैंट में रेस्टोरेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं कैंपस पे घूमते घूमते, इसका टाइम हो गया। अभी चलेंगे इन रेस्टोरेंट, पीटर्सबर्ग मल्टीप्लेन रेस्टोरेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इट्स गेटिंग कोल्ड एंड बाय, हैव अ डे।